क्योंकि आभा सिंह जो याचिकाकर्ता मुख्य है इसमें वो कुछ बोल रही है। The case is coming up at 902, which is very much in the beginning, and it would not go on for very long. So, in case his interim bail is extended, in the sense he gets a suspension of sentence, he can heave a sigh of relief. But in case the High Court not rejects it, he will immediately move an SLP to the Supreme Court under 374 of the CRPC. And in case the High Court rejects it, that the Sessions Court would be taking out a warrant of arrest, and the Mumbai police would be free to arrest Salman Khan from wherever he is and take him to Arthur jail or whatever. But there are fair chances, seeing his track record, seeing that he has been coming to the court regularly, and the Supreme Court guidelines has always been that bail not jail. So I think he stands a fair chance to get regular suspension of sentence. Another question: you played a crucial role. You intervened in the case as far as Sessions Court is concerned. How are you planning to intervene here at the High Court? See, as everybody knows, we had done a press conference in November 2012 where we had put up the case of perjury, that how this case was purposely delayed, and also in the Sessions Court, in our perjury application, we had said that Kamal Khan is a star witness and Kamal Khan is required for deposition because he had given a bond to the court that whenever he is called, he will come. His name was in the witness, but at the crucial time it was dropped. So we don't want that this legal loophole is used to his advantage in the High Court, because the whole 240-page order is somewhere based on Raveen Patil's statement, and since Raveen Patil is dead, the defense can always say that in cross-examination, in the retrial in Sessions, they could not do the cross-examination, so Raveen Patil's statement should be dropped, and that is why it is necessary that Kamal Khan is brought back and his deposition taken. So we would also bring the perjury application to the High Court. One question, it's a 240 pages long judgment, so will the prosecution need more time? Is there a possibility that the prosecution may ask? बड़ी खबर इस वक्त की, आभा सिंह ये कहती हुई, जो कि मुख्य याचिकाकर्ता, एक तरह से जब मामला ठंडा पड़ गया था वर्षों तक, तो याचिका आभा सिंह ने ही दायर की थी। वो कह रही है सलमान को बेल मिलने की ज्यादा संभावना है, और यही हमारे भी जितने जानकार हैं, जितने वरिष्ठ वकील हमारे साथ बैठे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन आभा सिंह, हालांकि जब बेल उन्हें मिली थी तब जबरदस्त रोष उन्होंने जाहिर किया था और आज तक पर ही कहा था कि ये बेल क्यों, क्या सिर्फ इसलिए, और वो भी कुछ घंटों में, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं। हालांकि कानूनन ये हक था और ये रास्ता था सलमान खान के लिए। हाँ, बेहतर तैयारी थी, इसीलिए फौरन हाईकोर्ट उनका वकील पहुंच गया। हरीश साल्वे पहले से आए हुए थे और उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा नाराजगी इस पर जाहिर कर रही थी। और सीधे शम्स हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। शम्स, आभा सिंह खुद कह रही हैं कि आज तो बेल मिलने की संभावना ज्यादा है क्योंकि कोऑपरेट करते रहे, कोर्ट के साथ सहयोग करते रहे। जी अंजना, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जस्ट मेरे पीछे अभी सलमान खान की जो बहन है अलवीरा, जो लगातार हर मुकदमे में उनके साथ होती है, चाहे वो जोधपुर हो या मुंबई हो, अभी अभी वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है। अरबाज खान भी कुछ देर के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। बात जो आपने आभा सिंह जी की 2 दिन पहले की भी बात है, जब मैंने ही उनसे बात की वहाँ पर, तब भी उनका यही कहना था कि हाई कोर्ट में सलमान खान जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर उनको जमानत मिल जाएगी। हालांकि उसी दिन 3 घंटे बाद मिली थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में फिर ये मामले की सुनवाई है। तो जो जानकार हैं, जिस तरीके के एक्सपर्ट हैं, जो कानूनी जानकार हैं, उनका यही कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट में सलमान को जमानत मिल सकती है। और एक और पता नहीं कैसी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जस्टिस थिप्से हैं, जिनकी कोर्ट में ये सुनवाई है, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि अक्सर ऐसे केसों में वो जमानत पहले भी दे चुके हैं, इतिहास रहा है। तो एक राहत की बात, जिस जस्टिस के अदालत में ये मामला गया है वो भी सलमान के लिए होगा। लेकिन जिस तरीके से 13 साल से सलमान जो है वो जमानती जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि 13 साल से वो जमानत पर है और कभी भी उन्होंने जमानत के कानून को नहीं तोड़ा। जब जब उन्हें कहा गया वो हाजिर हुए, जो कहा गया उन्होंने किया। तो एक बहुत बड़ा जो पक्ष है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो सलमान खान को जाता है। चूंकि एक और भी चीज़ है यहाँ पे अंजना, की कल से यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की छुट्टी होने जा रही है। 7 जून को उसके बाद अदालत दोबारा छुट्टी खत्म होगी, तब बैठेगी। तो ये आज का दिन है। अगर आज के दिन सलमान को जमानत मिल जाती है तो फिर ये आप मान के चलिए कि 7 जून से पहले न इस केस की अगली कोई सुनवाई होगी, न रेगुलर हियरिंग होगी। जो भी डेट आप आएगा वो 7 जून के बाद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंसी अब है नहीं। अगर जमानत मिल जाती है, रेगुलर बेल मिल जाता है, तो फिर सलमान के लिए 1 महीना तो आरामदेह है ही है। इसके अलावा फिर 7 जून के बाद जब भी वो केस लगेगा उसके बाद सुनवाई होगी। ठीक है, ठीक है।